جنوبی کشمیر کے برین پتھری ترال میں آج صبح فورسز نے جنگلاتی علاقے کا محاصرہ کیا تھا۔ اس دوران صبح 7 بجے کے قریب فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر شروع ہوا۔ اس انکاؤنٹر میں ایک مقامی ملیٹنٹ ہلاک ہو گیا ہے۔ مہلوک ملیٹنٹ کی پہچان ناگبل ترال کے شبیر احمد ملک کے طور پر ہوئی ہے۔ شبیر ملک کا تعلق انصار غزوۃ الہند سے تھا۔ فورس نے پورے علاقے کا کافی وقت تک محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی انجام دی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملیٹنٹ ایک کمین گاہ میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ سرچ آپریشن کے دوران فوج نے ڈرون کیمروں کا استعمال بھی کیا تھا۔ ادھر بس اسٹینڈ ترال اور ناگبل ترال میں فورسز اور مشتعل نوجوانوں کے بیچ جھڑپیں بھی رونما ہوئی۔ ناگبل، مانچھاما اور کہلیل میں بھی جھڑپیں ہوئی، ان میں چند افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ آج ترال میں ہڑتال بھی رہی، اس کی وجہ سے معمولات کی زندگی متاثر ہوئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج ریاست کے 2 روزہ دورے پر سری نگر پہنچے۔ ایئرپورٹ پر ریاستی گورنر ستیہ پال ملک اور دیگر اعلی عہدیداروں نے وزیر داخلہ کا شاندار استقبال کیا۔ امت شاہ نے اس کے بعد SKICC سری نگر میں اہم میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ میں گورنر اور ان کے مشیران، ڈویژنل کمشنر کشمیر، IGP اور فوج کے اعلی افسران موجود رہے۔ اس میٹنگ میں امرناتھ یاترا کی سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ شاہ نے ایک میٹنگ کے دوران دیگر صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے موقع پر سری نگر میں آج سیکورٹی الرٹ رہا۔ SKICC کو جانے والے اہم راستوں، ڈل گیٹ اور گپکار سڑکوں کو سیل کر دیا گیا تھا، جہاں کسی بھی گاڑی کے چلنے کی اجازت نہیں تھی۔ SKICC اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور کثیر تعداد میں فورسز کو تعینات کیا گیا۔ حفاظتی انتظامات اور سڑکیں بلاک رہنے سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر علی محمد ساگر کا کہنا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا دورہ اسی وقت ثمرآور ثابت ہوگا جب وسیع تناظر میں مختلف موضوعات کے حل کی کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی وزرائے داخلہ نے یہاں کے دورے کیے، لیکن زمینی سطح پر کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ علی محمد ساگر بارہمولہ میں پارٹی کے ایک روزہ کنونشن میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اس کنونشن میں ناصر اسلم وانی، جاوید احمد ڈار، بشارت بخاری اور پارٹی کے دیگر لیڈروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی کو مزید مستحکم کرنے ورکروں پر زور دیا گیا۔ یہ ہم نے شروع کیا ہے، ساؤتھ میں کمپلیٹ کیا ہے تمام 15 اسمبلی سیگمنٹ، اس میں اب نارتھ میں آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں تنظیم میں کمیاں خامیاں کہاں ہیں، تنظیم کے مزید مضبوط سطح پر بیسیکلی ان کنونشنوں کا وہی مدعا مقصد ہے، اور ریاست کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بحث مواضع کرنا اور لوگوں کی رائے جاننا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں ان حالات۔ دا بیوٹی آف ڈیموکریسی، دس از دا بیوٹی آف دا پارٹی آرگنائزیشن، کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مینڈیٹ اس کے گروپ کو دے دیں، یہ ہوتا ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہی ہوگا جو تنظیم فیصلہ کرے گی، ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کئی دفعہ راجناتھ سنگھ جی کو ملے، وعدے کی گئے لیکن ان وعدوں کا عملایا نہیں گیا۔ آج بھی کہتے ہیں بڑا سخت ہوم منسٹر ہے، نیا ہوم منسٹر بنا ہے، BJP کا پریزیڈنٹ بھی ہے، تو اگر وہ واقعی کچھ جو میسو ہیوج مینڈیٹ ملا ہے مودی جی کو، اگر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست کو حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، گرفتاریاں بند کرنے کے لیے، جو سیاسی قیدیوں ان کو رہا کرنے کے لیے، اور جو یہ آپریشن کیسو آل آؤٹ ہے اس کو بند کریں گے، اور نہ صرف حریت سے بات چیت جس کا انہوں نے اعلان کیا ہم نے خیر مقدم کیا، بلکہ جو نوجوان جن کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ یہاں لوکل بچے ہیں، ان کو بھی ان سے بھی بات کریں تاکہ وہ مین سٹریم میں آ جائیں۔ دفعہ 370 معاملے پر حکومت نے راجیہ سبھا میں اپنا موقف پیش کیا ہے۔ ایوان بالا میں دفعہ 370 اور 35A سے متعلق سوالوں کا تحریری جواب دیتے ہوئے حکومت نے صرف آئین کے متعلقہ دفعات کا حوالہ دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ آئین کے مطابق دفعہ 370 میں ترمیم کا صدر جمہوریہ کو اختیار حاصل ہے، تاہم اس کے لیے ریاستی حکومت سے مشاورت کی ضرورت ہے۔ آسام پولیس نے وادی کشمیر کے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ساحل عباس نامی اس نوجوان پر ایک شہید CRPF جوان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر غیر شائستہ تبصرہ کرنے کا الزام ہے۔ ایک BJP کارکن کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کر کے ساحل عباس کو کشمیر سے گرفتار کر کے گوہاٹی لایا ہے۔ SSP کمپروپ کی ہدایت پر ایک ٹیم نے فوج اور جموں کشمیر پولیس کی مدد سے ساحل کو گرفتار کر لیا۔ ساحل عباس عرف عباس بٹ سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ اس پر CRPF جوان شہید سنیل اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر غلط اور غیر شائستہ کمنٹ کرنے کا الزام ہے۔
কমলপুৰ PS কেছ নম্বৰ 156/19 এইটো আমাৰ যি শ্বহীদ হৈছিলে CRPFৰ পালাৰা অঞ্চলৰ সুনীল কলিতাৰ শেষকৃত্যৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নীয়ে তেওঁক চেলুট দি থকা অৱস্থাত যিখন ফটো ফেচবুকত আহিছিল, সেই ফটোখনত তেওঁ এই যিজন ছায়েদ আব্বাছ ওৰফে আব্বাছ ভট্ট তেখেতে এক অশ্লীল মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিল আৰু সেইমৰ্মে আমাৰ এটা কেছ লোৱা হৈছিল। शहीद CRPF एहलकार की सोशल मीडिया पर नमूदार तस्वीर पर मुतनाज़ा रिमार्क्स करने पर गिरफ्तार नौजवान का ताल्लुक कुलगाम से है। सियारपुरा नूराबाद कुलगाम के मोहम्मद अब्बास भट्ट को आसाम पुलिस ने IT एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पेशे से मजदूर अब्बास के अहल खाना ने शहीद CRPF जवान के अहल खाना और उसकी अहलिया से माफी की दरख्वास्त की है। उन्होंने केस वापस लेने की अपील की है। अब्बास घर का वाहिद कमाऊ है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। गुजारिश करती हूँ नरेंद्र मोदी साहब से और गवर्नर से और उस बहन से जिसे हमारे भाई के एक उम्मीद की वजह से इतनी ठेस पहुँच गई। हम गुजारिश करते हैं अपनी ओर से भी और उसकी ओर से भी कि प्लीज़ उसकी गलती को माफ़ करे। गलती हो गई उससे और हमारे भाई को वापस भेज दे प्लीज। अगर बच्चे से गलती हो गई हम माफ़ी चाहते हैं, हम इससे माफ़ी मांगेंगे। हमारी बेटी है, अगर ये हमको माफ़ करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब पूरा गांव वाले माफ़ी मांग रहे हैं। सब बच्चे, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्ची है छोटी सी, वो भी बहुत गरीब है। इसका नाग के जच्चा बच्चा अस्पताल शीरबाग में एक हामला खातून अपने बतन में पल रहे बच्चे समेत फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक सरनपाइन की शोबी जान नामी खातून को दर्दज़दा की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया। रिश्तेदारों के मुताबिक डॉक्टरों की अदम तवज्जुही की वजह से खातून ने दर्द से तड़प कर जान दे दी। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टरों से कई बार मरीजा को ऑपरेशन करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन डॉक्टरों ने एक न सुनी। ये भी इल्जाम लगाया गया कि रात के औकात में कोई भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था। इस वाकये के बाद मरीजा के अहल खाना और रिश्तेदारों ने अस्पताल में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने लापरवाही में मुलविस डॉक्टरों और दीगर अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुश्तल अफराद ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की। उधर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने वाकये की जांच का हुक्म दिया है। पुलिस ने भी एक मामला दर्ज कर लिया है। साढ़े 8 पे वो बुथी क्या अतो क्या ओड अचान मड़ी कुछ ओड 2 बजे वो तुम नुन चाय कफा बे करू दही खरा डॉक्टर साहब ना सुया पर शामन द्राय 8 नफर कह नफर शामन द्राय रात 3 बजे मे फोन बरादर लकुट कर फोन योतन अमिस गई हालात खराब बे योर वोतुस मे वुच डेथ इन दोप मे क्या दिल दोप बहर अमिस ब्लड मोन बरादर लकुट वन दपान ना अम्स 10 पॉइंट खून तुम क्या ाड़न ब्लड वनकन वलियो दिमो सारी दिमो ब्लड यमो कोर अंदर किन लाक तो थक अंदर किन वुन नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने कौमी तालीमी पॉलिसी की तैयारी के अमल में उन्हें शामिल न करने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अलायंस के सदर डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पॉलिसी पर नुक्ते नज़र पेश करने के लिए हुकूमत ने सिर्फ 30 दिनों का वक्त ही दिया है, जो कि काफी कम मुद्दत है। उन्होंने बिल के बाज़ नुकात जैसे असातिज़ा के लिए अहलियती इम्तहान, निजी स्कूलों के लिए SMC पर एतराज़ जताया है। शर्मा ने मजीद कहा कि पॉलिसी में इंसानी हकूक और आईनी हकूक पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, वहीं संस्कृत और योगा को काफी उजागर किया गया है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के चेयरमैन GN वार ने कहा कि इस पॉलिसी की तैयारी में असातिज़ा को शामिल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अहम मौज़ूआत जैसे जिन्स, ज़ात, माहौलियात पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। बिल्कुल इस पर राय नहीं ली गई है, तो जिससे अब ये 30 दिन इसके लिए दिए गए हैं कि 30 दिन के अंदर आप ऑनलाइन या आप लिख कर अपनी राय भेज सकते हैं। तो इस पॉलिसी को ड्राफ्ट को बनाने में कस्तूरी रंगन कमेटी को 3 साल का समय लगा और हमें 30 दिन दिए जा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में है। अगर तमिलनाडु से कोई व्यक्ति इस पे पढ़ के सलाह देना चाहता है, उसको अगर हल्की फुल्की हिंदी आती भी होगी तो 648 पेजों को सही ढंग से समझना उसके लिए कठिन कार्य है। उर्दू में ये नहीं है, पंजाबी में ये नहीं है, तेलुगु में ये नहीं है। अगर आप पूरी देश की राय चाहते हैं तो हमारा ये था कि एक तो मेजर स्टेक होल्डर की इस पर राय ली जाए।
वो ली नहीं गई। एजुकेशन को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हम कहते हैं कि डोंट पॉलिटिसाइज इट, लेट एजुकेशन बी एजुकेशन। अदरवाइज अगर आप एजुकेशन को भी पॉलिटिसाइज करेंगे, इट विल बी ए कैटास्ट्रॉफ, इट विल बी ए डिवास्टेशन। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से कौमी तालीमी पॉलिसी के मुसव्विदे पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया। यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एजुकेशन और इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा सेमिनार में तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी स्टाफ और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी में बच्चों को मयारी स्कूली तालीम फराहम करने पर जोर दिया गया है। यही है कि हम इकट्ठे बैठ के इस ड्राफ्ट पॉलिसी को एनालाइज कर ले और हम कुछ अपने इनपुट्स भी दें कि कहाँ पर क्या कमियां, वीकनेसेस हैं, कहाँ पर क्या इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। यही हमारा इरादा है। टेक्निकल 3 सेशंस इसमें कर रहे हैं, जिसमें हम 3 अलग अलग मुद्दों पे, ड्राफ्ट पॉलिसी के 3 मुद्दों पे बात करेंगे और उस पर ओपन सेशन डिस्कशन होगा और वहाँ से हम रिकमेंडेशंस लाएंगे और वो रिकमेंडेशंस हम कंसर्न ड्राफ्ट पैनल को भेज देंगे ताकि उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। गुलमर्ग वेलफेयर सोसाइटी ने सयाहती मकाम गुलमर्ग में गैर कानूनी तौर पर हो रहे तामीराती कामकाज के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुतालबा कर रहे थे कि गुलमर्ग में पुख्ता तामीराती काम को रोका जाए। टंगमर्ग में इस एहतजाज में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाजी हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। एहतजाजियों ने गवर्नर और हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि गुलमर्ग में गैर कानूनी तौर पर हो रहे तामीराती कामों को बंद किया जाए। में आप देखें रिपेयर के नाम पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है? 4 रूम्स की जो हट है उसको 20 कमरे 40 कमरे का होटल बना रहे हैं। गवर्नमेंट से, यहाँ से जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, उनसे गुजारिश करते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने भी इस पे बैन करा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कुछ लोग जबरदस्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन गुलमर्ग में हो रहा है, अगर किसी को 1 कनाल जमीन लीज पे दिया गया है, उसको 4-4, 5-5 कनाल और कोई पूछने वाला नहीं है। यह कंस्ट्रक्शन बंद करो। हमें पता है, हम गुलमर्ग के रहने वाले हैं, हमें पता है क्या हो रहा है गुलमर्ग में। ये गलत हम नहीं होने देंगे। लेह में सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने स्पेशल ड्यूटी अलाउंस की अदायगी समेत दीगर उमूर के हल का मुतालबा किया है। इस ज़मन में एडीसी लेह को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया। लेह में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से एक पीसफुल प्रोसेशन निकाला है और साथ में हमने 1 डे पेन डाउन स्ट्राइक का कॉल भी दिया है। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारा जो लेह की एम्प्लॉयज़ का एक 2-3 डिमांड है। एम्प्लॉयज़ इन्होंने हमें एक मेमोरेंडम सबमिट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें इन्होंने 3 चीज़ें डिमांड की हैं। पहला 10% SDA स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फेवर में, दूसरा चीज़ है इनका सैलरीज़ का मसला है कुछ RET रमसा टीचर्स का, और तीसरा 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो इनकी जो भी डिमांड है वो हमने प्रदेश स्तर पर यानी गवर्नमेंट लेवल पर भेज दिया है। 2018 को मेन टाउन बीरवा में आंधी से 2 दर्जन के करीब कुंबे बेघर हो गए थे। जिला इंतजामिया ने मुतासरा कुंबों की फहरिस्त तैयार करके इमदाद देने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम मुतासरीन आज भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। न्यूज़ 18 ने जब ये मसला सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीरवा के सामने रखा तो उन्होंने बहुत जल्द मुआवजा फराहम करने का यकीन दिलाया। लटे आज पगह सुबह से करान अन किराए मजूरी करान हुपान यह करान तो बरान किराए गसान तौर तक दोस प्रारान, मगर सोन मसल ना गो कहन हाल। दरबदर दोस फेरान मजूर दो करो वातान बडगोम वन SDM वन DC साहब तक वन करो मीटिंग, सनिस बारस मज आए कह कत कर। वो रिपोर्ट हमने तैयार भी की है और सबमिट भी की है DC ऑफिस को फॉर कंपनसेशन। तो अभी तक शायद उसकी मीटिंग भी 25 को रखी गई थी, 25 जून को, मगर चूँकि नया प्रोग्राम आ गया बैक टू विलेज, तो उसमें ज़्यादा एंगेजमेंट होने की वजह से वो मीटिंग डफर की गई। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी वो मीटिंग होगी और उसमें उस कंपनसेशन का फैसला लिया जाएगा। पुलवामा और शोपियां के कई इलाकों में ज़ालाबारी और तेज हवाओं से सेब और दीगर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया ने नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें तश्कील दी है। ताहम काश्तकारों NC के सीनियर लीडर शौकत हुसैन गनाई, कांग्रेस के जिला सदर पुलवामा फयाज अहमद डार ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुतासरा काश्तकारों कर्जाजात माफ किए जाए।
آج پھر ایک بار سرکار سے یہی گزارش رہے گی کہ جو مالکان باغان کو جو ژالہ باری سے نقصان ہوا ہے اس کو بھرپائی کرنے کے لیے اگر سرکار جو گورنر ایڈمنسٹریشن اس وقت ہے اگر وہ ان کو KCC معاف کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک راحت کی سانس جو ہوگی وہ ان کسانوں کو پہنچے گی. اور میری گورنر صاحب سے گورنر ایڈمنسٹریشن سے یہی گزارش ہے کہ جو حال ہی میں ژالہ باری سے جو مالکان باغان کو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ان کا جو KCC لون ہے ان کو وہ معاف کرنا. ملک کے مختلف حصوں میں گرمی کی شدید لہر پائی جا رہی ہے. اس وجہ سے خاصی تعداد میں لوگ جموں کشمیر کا رخ کر رہے ہیں. صبح جموں کے پتنی ٹاپ اور سناسر میں آج کل سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیں ہمارے نمائندے بلال بالی کی رپورٹ. قدرتی خوبصورتی سے مالا مال صوبے جموں کے سیاحتی مقام سناسر میں آج کل سیاحوں کی کافی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے. ان میں ملک کی مختلف ریاستوں سے آئے سیاحوں کے علاوہ مقامی سیاح بھی شامل ہیں. ملک کے اکثر علاقوں میں گرمی کی شدت میں ہو رہے اضافے کے باعث لوگ جموں کشمیر کا رخ کر رہے ہیں. سیاحتی مقام سناسر میں آ رہے سیاح یہاں کے موسم، قدرتی خوبصورتی اور جھیل کی سیر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. وہ سناسر سے شنکھ پال ٹریک کے لیے بھی جا رہے ہیں. سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ دیگر لوگوں کو بھی جموں کشمیر کی سیر کرنے کی صلاح دیں گے. These all are new to us. The culture is new and the dressing sense, even the food, everything is new. We really had a very good time here. We enjoyed it. And hopefully we will come again here and we are going to spread this to all our colleagues. They will come here. I think we have to, because people are, most of them, they don't know. We have this kind of place here. I like this Patni Top and these views. And I am enjoying. It's very first for me. Tell to my friends, most people I will tell and they will come here to Patni Top. And I like this trip and I am from Chennai, Tamil Nadu. جموں اور گرد و نواح کے اضلاع میں بھی شدید گرمی کے چلتے بڑی تعداد میں لوگ سناسر پتنی ٹاپ کا رخ کر رہے ہیں. سیاحوں اور مقامی لوگوں نے تاہم نتھا ٹاپ سے سناسر تک کی سڑک کے خستہ حالی پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے ایسے خوبصورت علاقوں میں تمام بنیادی سہولیات میسر رکھنے پر زور دیا ہے. یہاں پہ اچھا ویدر ہے. ابھی ہم کو ایکچولی بہت ٹھنڈا فیل ہو رہا ہے. یہاں پہ بچے بھی ٹھنڈ فیل کر رہے ہیں. اور بیڈ ایکسپیرینس یہ ہے کہ روڈز ایکچولی اچھے نہیں ہیں. ہم کو آنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے. تھوڑا اور ڈیولپ ہونا چاہیے کہ زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ آئیں. یہاں آنے کے لیے بہت جھیل ہے دیکھیے, اور اتنا اچھا کلائمیٹ ہے. ہم ہماچل پردیش میں بھی گئے ہیں, وہاں کھجیار نام ایک جگہ ہے. یہ جسٹ لائک دیٹ ہے. روڈ کا تھوڑے سے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ادروائز مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا کم ہے. سر ادھر مطلب کسٹمر بہت کم آ رہا ہے. ایک تو ادھر پرابلم, بڑی پرابلم ہے کہ یہاں پر روڈ کی بہت پرابلم ہے. یہ نتھا ٹاپ سے ادھر 9 کلومیٹر روڈ ہے جو یہ بہت ڈیمیج ایریا ہے, اور اس کی وجہ سے گاڑیاں ادھر کم آتی ہیں. اور باقی ادھر سر دیکھنے لائق بہت سی چیزیں ہیں. نیوز 18 اردو نے سناسر سڑک کی خستہ حالی اور بنیادی ڈھانچے کی کمی کا مسئلہ ضلع ترقیاتی کمشنر رام بن شوکت اعجاز بٹ کے ساتھ اٹھایا. انہوں نے اس سلسلے میں اقدامات کا یقین دلایا ہے. سرکار کو ایک پروجیکٹ بھیج دیا ہے انڈر CRF, تو وی آر ایکٹیولی پرسوئنگ کہ اس روڈ کو ہم جلد سے بیشتر ٹھیک کر لیں تاکہ جو سناسر کا ٹورزم پوٹینشیل ہے پورا ایکسپلور ہو. صوبے جموں میں سیاحت کے اعتبار سے کافی وسائل موجود ہیں, لیکن اس جانب توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. نیوز 18 اردو کے لیے رامبن سے بلال بالی کی رپورٹ. اوڑی کے دردکوٹ میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں انفراسٹرکچر کی کمی اور اساتذہ کی عدم دستیابی سے طلباء کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے. مقامی افراد نے انتظامیہ سے اس جانب توجہ دینے کی مانگ کی ہے. پیش سجاد حسین کی رپورٹ. اوڑی میں دردکوٹ گورنمنٹ ہائی اسکول کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ اس دور دراز علاقے کے بچوں کے مستقبل کو لے کر کس قدر سنجیدہ ہے. اوڑی ٹاؤن سے 20 کلومیٹر دور پہاڑی علاقے میں واقع اس اسکول میں بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی ہے اور مناسب تعداد میں اساتذہ بھی دستیاب نہیں ہیں. طلبہ کا کہنا ہے کہ ٹیچرز دستیاب نہ رہنے سے ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے. بہت مشکلات ہوتی ہیں سر. ٹیچر کی 17 پوسٹ ادھر 7-8 ہوتے ہیں سر. ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں وہ بیچ میں ہفتے میں 1-2 بار آتے ہیں سر.
तो इधर बहुत मुश्किलात होती है सर। मैथ टीचर प्राइवेट स्कूल से लिए गए हैं सर। 1st से 10th तक स्कूल है, यहाँ पे कुल पूरे 8 टीचर हैं सर। हमें बहुत परेशानी होती है। हमारे यहाँ पुल भी नहीं है और रोड भी नहीं है, हमारे स्टाफ में कमी भी है, 7 पोस्टें हमारी खाली हैं, जबकि ऐसा कोई टीचर नहीं है जो हमें पढ़ा पाता है। स्कूल टीचर्स का कहना है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करें, ताहम स्टाफ की कमी की वजह से वो अपने पेशे से इंसाफ करने से कासिर हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम जस्टिफाई करें, लेकिन जहाँ तक हमारे एफर्ट्स हैं वहाँ हम लगाते हैं, लेकिन 8 क्लासेस या 10 क्लासेस को पढ़ाना एक टीचर के लिए, सब्जेक्ट टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं साइंस टीचर हूँ, मैं कितने भी एफर्ट्स लगाऊँ, मैं 10 क्लासों को जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। जहाँ स्पेशलाइजेशन की जरूरत है वहाँ स्पेशलाइज्ड टीचर चाहिए। मकामी अफराद का इल्जाम है कि इंतजामिया और महकमे तालीम ने स्कूल को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। इनका कहना है कि सियासी लीडरान भी सिर्फ इलेक्शन के दिनों में यहाँ नजर आते हैं। बिल्डिंग का दौर छोड़ के तो ठेकेदार सब भाग गए हैं यहाँ से, तो न ही डीसी साहब इसे तो तवज्जो दे रहे हैं, न ही यहाँ गवर्नर इंतजामिया यहाँ दे रही है, तवज्जो दे रही है। यहाँ कितने गाँव के मुंसलिक लोग बच्चे आते हैं, सिर्फ यही है कि बस दे दो जी, वोट दे दो, आते हैं तो देखते हैं, उसके बाद कोई नहीं। नए आज तक 5 साल यहाँ हो गए, हमारा एमएलए उसने यहाँ तक नजर नहीं दी। जब डीसी बारामुल्ला से इस मामले को रुजू किया गया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और असातिज़ा की कमी के मसले को हल किया जाएगा। ये बात मैंने भी सुनी, मुझे याद है जिस दिन उन्होंने वो पुल का जिक्र किया था मीडिया में, उसी दिन स्टाफ के बारे में भी जिक्र हुआ था। तो मुझे याद है मैंने उसी दिन जो है सीओ डिप्टी सीओ को कहा था कि वहाँ जड़ियों को या जो भी है उनको भेज दीजिए और स्टाफ का इंतजाम करे। तो मुझे डिटेल्स देनी पड़ेगी, मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई न कोई पेशरफ्त होगी। उम्मीद है कि डीसी बारामुल्ला इस मामले के हल के लिए संजीदा इक़दामात करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उड़ी से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत करगिल के वाखा ब्लॉक में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। लोगों ने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से मुतल्लिक़ा अफसरों को वाकिफ कराया। अफसरों ने यकीन दिलाया कि मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। बैक विलेज इन मैडम से संगमा खेर यूल लंगा तास्पिन गंगमा सोसे डिंग लास्ट इन दी पंचायत गालंगा संगमा ग्राम सभा इन दिनिंग डिपार्टमेंट मी मांगो नंगयाबो मैडम केना वीडियो न्याबो तने मी मांगो थुसे दु न्याबो मी संगमे प्रॉब्लम चियो दन गांगमा खोस न्याने तने चामन्यान देगा। बैक टू विलेज मुहिम के दौरान सलामाबाद उड़ी में एक मेले का इनेकाद किया गया। रिवायती, सकाफती और तरक्याती अमूर से मुतल्लिक़ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप, बेवाओं में स्विंग मशीन और तलबा में स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम के अलावा दीगर प्रोग्रामों शामिल रहे। इस मौके पर डीसी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ऊडी से ड्रग डी एडिक्शन रैली को हरी झंडी दिखाई। डीसी ने लोगों को हुकूमत की स्कीमों से इस्तिफादा करने का मशवरा दिया। बैक टू विलेज के तहत जियारत बाबा ऋषि के छोटी पथरी में डायरेक्टर स्टेट्स कश्मीर तारिक हुसैन गनाई ने इलाके में लोगों को दरपेश मसाइल सुने। गनाई ने एसडीएम गुलमर्ग, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म, तहसीलदार टंगमर्ग और दीगर आला अफसरान के हमरा बाबा ऋषि के बेशतर इलाकों का दौरा किया और तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। लोगों ने इस कदम की सताइश की। खुशी है कि इसके बावजूद कि यहाँ के लोग जो है लेबर क्लास है, उन्हें अपना वक्त निकाल के यहाँ आज आए, अपनी बात मेरे सामने रखी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पूरे इलाके को अच्छी तरह से स्टडी करूं, यहाँ के जो पोटेंशियल्स हैं उनको देखें कि उन पोटेंशियल्स का फ़ायदा जो है इस इलाके को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर बैक टू विलेज मुहिम के तहत प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। महकमे रोजगार के कमिश्नर सेक्रेटरी सुरभ भक्त ने शेखपुरा पंचायत में लोगों से तबादले ख्याल किया। इस मौके पर डीसी बडगाम ने मुहिम के तहत अंजाम दी जा रही सरगर्मियों से वाकफियत हासिल की। लोगों ने इलाके में रेलवे ट्रैक पर ब्रिज की तामीर, प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाने, ज़राई ज़मीनों को सैराब करने और पीने के पानी की फराहमी और मुनासिब तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने की अपील की। बाद में शेखपुरा स्टेडियम में क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुस्तकीन में इनकम सर्टिफिकेट, PR सीरीज, स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए गए। इस
इस स्कीम का जो खास मकसद है, जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पंचायत बनाई है, पंचायत के इलेक्शन हुए, उनकी एक्टिविटी को उनको जो भी उनके रोल है सोसाइटी के अंदर, जो भी स्कीम्स को उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए उनको आगाह करना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना, और खास तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पब्लिक को सुन के उनके जो जितने मसाइल हैं उन मसाइल को गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करे। जो सरकारी स्कीमें हमारी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लगभग 600 ज्यादा स्कीमें हैं विभिन्न महकमों में, उन स्कीमों का फील्ड पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या बेनिफिट पब्लिक तक पहुंच रहा है, उस स्कीम में और क्या सुधार किया जा सकता है, और जो हमारे डिफरेंट विभिन्न वर्ग हैं उन तक वो स्कीमें पहुंच रही हैं, महिलाओं तक पहुंच रही हैं, ये बेसिक मकासद है। बैक टू विलेज के तहत डूरू शाहबाद के लाड़कीपुरा, वेरीनाग और हल्शाबाद में कई तकरीबात मुनक्किद हुई। कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह हुआ। आम लोगों के साथ साथ अफसरान और पंचायती नुमाइंदों के बीच तबादला ख्याल हुआ। प्रोग्राम में लोगों ने मुख्तलिफ मसाइल अफसरान के सामने पेश किए। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए MG नरेगा में काम कर रहे मुलाजमीन ने गैर मामूली रोल अदा किया। लोगों ने उनकी सराहना की। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत मरमत ब्लॉक के दौरे के दौरान DC डोडा ने एक फुट ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस ब्रिज से तकरीबन 6 पंचायतों के लोग मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर DC ने BDO को हिदायत दी कि ब्लॉक में ज़ेर इल्तवा पुलों की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। और ये 5-6 पंचायतों को जो बीच सेंटर एरिया आता है, जैसे बिहोता, अपर बिहोता, मगोता, लब्बड़, प्रबल, रोड, हर जो यहाँ पर जुड़ता है। इस पुल से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। कास्ट तब 23 लाख थी जो एस्टिमेटेड कास्ट, उसके अंदर ही हमने इसको ख़त्म किया 23 लाख जी। हमने जैसे हमने 2016-17 में शुरू किया था, तो 2016-17 में हमने यहाँ पे लगभग एक साल में 21 कलवर्ट हमने बनाए थे। 21 कलवर्ट, 2 बड़े ब्रिज, और इस साल भी हमारे 2 ब्रिजों पे काम चल रहा है। कश्मीर गुलकार सोसाइटी की जानिब से श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कश्मीरी मौसीकी के उस्ताद गुलाम अहमद सूफी की याद में इसका इनकाद किया गया। वादी के कई मारूफ गुलकारों ने लोगों के सामने सूफियाना कलाम और छकरी पेश की। वादी के कई सरकर्दा गुलकारों को इनामात से नवाजा गया। मुंतजमीन का कहना है कि कश्मीर की रिवायती मौसीकी के साथ वाबस्ता लोगों की हौसला अफजाई के लिए खास इक़दामात नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि आज के प्रोग्राम में उनके घर से कोई शामिल नहीं हुआ। गवर्नमेंट को करना चाहिए, मगर आज तक गवर्नमेंट ने कभी कदम नहीं उठाया है। चूँकि हमारी अब एक तंजीम बाज़ाब्ता है, एक सोसाइटी है हमारी, कश्मीर गुलकार सोसाइटी, तो हम ये रंगारंग प्रोग्राम वैसे भी करते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम गुलाम अहमद सूफी का, ये हमारा एक लेजेंड सिंगर था यहाँ हमारे कश्मीर का, इसकी बड़ी देन है फ़नी मौसीकी में। राजौरी के कोतरनंका में कौमी सतह पर दंगल का इनकाद किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया। मकामी लोगों की कसीर तादाद ने दंगल का मुशाहिदा किया। DC राजौरी मेहमान ख़ुसूसी थे। इस मौके पर DC राजौरी ने कहा कि दंगल कदीम रिवायत है और इससे नौजवान जिस्मानी तौर पर फिट रहते हैं और वो बुरी आदतों जैसे मंशियात के इस्तेमाल से बचते हैं। प्रोग्राम में हमारे यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, जम्मू और यहाँ के लोकल पहलवान मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जो मुकाबला जात होते हैं उनमें हमारे नौजवानों को रोल मॉडल्स मिलते हैं। भद्रवाह में तजुर्बाकार खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैच खेला। 55 से 80 साल की उम्र के खिलाड़ी खेल के मैदान में नजर आए। दरअसल इन अफराद के मैच खेलने का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को खेलकूद की सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना था। इन अफराद का कहना है कि ज्यादातर नौजवान स्पोर्ट्स सरगर्मियों से दूर हो रहे हैं और सिगरेट नोशी, मंशियात की लानत और दीगर बुरे कामों में मुलव्वस होते जा रहे हैं। PG कॉलेज भद्रवाह के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर खेले गए मैच का मुशाहिदा करने के लिए कसीर तादाद में लोग जमा हुए थे। आज
जो मैच यहाँ पर रखा है आपने देखा होगा, इसमें 68 प्लस के लोग भी हैं जो क्रिकेटर रहे हैं, 65 भी है और प्लस 50 से शुरू है। इसमें प्लस 50 से शुरू है। हम यही मैसेज आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब एक्टिवेट आदमी जब इसमें आ जाता है और इसकी जो एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह वो उसमें आ जाता है तो बुराइयों से बचता है। खुला मैसेज जाए कि अगर हम इस वक्त भी ग्राउंड में उतरते हैं 70 साल की एज में, तो इन छोटे बच्चों को उतरने में क्या जो जनरेशन को, ये जवानों को मैं यही दे कि ड्रग्स से अवॉइड करते रहे। ये नेसेसिटी हो गई है कि बच्चों को गेम में इन्वॉल्व करो, ड्रग एब्यूज बाकी चीजों से आपको बाहर जाना है। पता है ये नेचुरल डेटरेंस है इसमें। इफ यू आर इन स्पोर्ट्स इट्स ए नेचुरल डेटरेंस। शोपियां के ड्राइवर तारिक अहमद की ईमानदारी की हर तरफ सराहना की जा रही है। सुमो ड्राइवर तारिक ने अहरबल में भारी रकम और जेवरात से भरे बैग को भोपाल के सयाहों को वापस लौटाया था। एनसी लीडर शौकत हुसैन गनाई ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तारिक के इस इकदाम की सरकारी तौर पर हौसला अफजाई की जानी चाहिए। डायरेक्टर सयाहत कश्मीर निसार अहमद ने कहा कि उनका महकमा भी तारिक की हौसला अफजाई करने जा रहा है। परवाह न करते हुए ईमानदारी का सबूत दिया है। अब मेरी सरकार से गुजारिश है, खासकर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो ही हमें पता चला हमने अपने वही भी एक किस्म की हौसला अफजाई है कि हमने अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर, ट्विटर पर और अपनी डिपार्टमेंट वेबसाइट पर उसका पूरा वो ब्यौरा चढ़ा दिया। कोशिश करेंगे कि इसको एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको रिकमेंड करेंगे फॉर ब्रेवरी अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विस।